Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Zahra Noreen, Course Instructor Plant Physiology 1, BOTN 3119. Today's lecture is in continuation of biological nitrogen fixation. Objectives of the lesson are to learn development of nodule in detail. In this regard, we will discuss the signaling interactions between symbiotic prokaryotes and their hosts, colonization and nodule initiation, formation of infection thread, and release of bacteria. In the previous lecture, I have described about the steps of nodule formation. Now we will see the detail of these steps like colonization and nodule initiation, invasion of the root hair and the formation of an infection thread, and finally the release of bacteria. First of all, early stage involves the colonization and nodule initiation. Now we will discuss the three stages in detail. First of all, early stage, which involves colonization and nodule initiation. As I told you that rhizobia can be free living. In this form, they are saprophytic soil bacteria and their number in the soil are highly variable. They may be absent in the soil or they may range from 10 to 107 in number per gram of soil. And this number depends on the soil structure and moisture content and other physical and chemical properties, which will decide that how many bacteria can invade in the soil. In the presence of host root, as I told you, there is a exchange of signals between the host cells and the bacterium. और वो जो सिग्नल के एक्सचेंज की वजह से बैक्टीरिया जो है वो इनकरेज होते हैं कि वो राइजोस्फीयर यानी कि वो एरिया जो कि रूट के इर्द गिर्द होता है सॉइल का उसके अंदर ये कॉलोनाइज हो जाए और मल्टीप्लाई हो और ये जो आप कह लें कि ये जो इनिशियल अट्रैक्शन है राइजोबिया की टू रूट्स दिस अपीयर्स टू इन्वॉल्व द पॉजिटिव कीमोटैक्सिस कीमोटैक्सिस क्या है दिस द मूवमेंट टुवर्ड अ केमिकल स्टिमुलेंट or this positive chemotaxis is actually as is an important adaptive feature of the microorganisms. Generally अगर आप इसको देखें तो ये microorganisms की help करते हैं. नंबर एक ये न्यूट्रिएंट को इस कीमोटैक्सिस के ज़रिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस जगह पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं और वहाँ पे ये उस जगह पे ये अट्रैक्ट होते हैं और फर्दर ये जो केमिकल्स हैं ये जो रिलीज होते हैं फ्रॉम द होस्ट प्लांट दे आल्सो हेल्प देम टू ग्रो एंड डेवलप एंड रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल और इसी तरह की जो ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जो कि सिग्नल्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं उनमें से जो आप कह सकते हैं कि राइजोबिया को अट्रैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं वो हैं फ्लेवोनाइड्स जिनमें से एक की जो डिटेल्ड आप कह लें कि डायग्राम और वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने एक्सप्लेन की हैं द नेक्स्ट स्लाइड. Here is the example of the flavonoid, which is luteolin here. The structure of the luteolin is given here that act as a signal chemical which attract the bacteria to the rhizosphere of the host plant. Actually, because of this signal, the node genes of bacteria they get stimulated and they produce the protein which is further utilized for the formation of nodule in the host plant. This process is elaborated in the diagram on the left side. Actually, I have taken this diagram from the given source. This diagram actually comprehensively giving detail of the use of flavonoid for the attraction of the rhizobium or the fungi or the Frankia species toward the host plant. But with respect to the current lecture, we will focus on these two types of attraction. The first is in the center one,
जिसमें आप देख सकते हैं कि प्लांट के जो रूट के सेल्स हैं ये फ्लेवोनाइड्स, इसकी एक टाइप मैंने ये आपको लिटलिन बताई है, ये रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से जो राइजोस्फीयर में जो बैक्टीरिया हैं उनके जो नोड जीन्स जो हैं ये काफ़ी तरह के हो सकते हैं, ए बी सी डी और ई और एफ भी हो सकते हैं। तो जिसमें से मैंने अभी ये मेंशन किया आपको कि जो डी टाइप के जीन हैं वो बैक्टीरिया के जो है वो अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो ये नोड जीन्स जो है फिर उनको हम कहेंगे कि वो नोड फैक्टर है, मतलब वो प्रोटीन जो कि नोड जीन की वजह से बनेगी उनको हम नोड फैक्टर का नाम देंगे। और वो नोड फैक्टर का क्या यूटिलाइजेशन है कि ये फिर नोडुलेशन यानी कि नोड्यूल फॉर्मेशन में जो है ये हेल्प करेंगे इनटू द होस्ट सेल। तो प्लांट ने फ्लेवोनाइड को रिलीज किया, फ्लेवोनाइड की वजह से बैक्टीरिया अट्रैक्ट हुए, अट्रैक्ट होने के साथ साथ उनके नोड जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए हैं, और नोड जीन्स के एक्टिवेट या स्टिमुलेट होने की वजह से नोड फैक्टर प्रोटीन यानी कि नोड फैक्टर्स बने, और इन नोड फैक्टर्स की हेल्प से नोडुलेशन का प्रोसेस यानी कि नोड्यूल फॉर्मेशन इन द होस्ट रूट सेल्स जो है वो पॉसिबल होगा। जस्ट लाइक दैट अभी इसकी स्टडी नहीं हुई क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में कि जो बहुत ज़्यादा स्टडी है वो लेग्यूम और राइजोबिया का जो रिलेशनशिप है इसको लेकर ज़्यादातर स्टडीज जो है उनका फोकस रहा है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि देर आर सम नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स एज वेल जो कि नोड्यूल फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में वो राइजोबिया के साथ भी कर सकते हैं और फ्रैंकिया के साथ भी कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे क्योंकि इसको भी स्टडी नहीं किया गया, बट देर इज़ अ सजेशन कि जिस तरीके से नोड जीन्स इन द राइजोबियम जो हैं वो अट्रैक्ट और स्टिमुलेट होते हैं टुवर्ड्स द फ्लेवोनाइड्स, बिल्कुल इसी तरीके से ये फ्लेवोनाइड्स जो हैं वो फ्रैंकिया जो कि फिलामेंटस स्पीशी है इसके भी अंदर किसी फैक्टर्स को बनाने और स्टिमुलेट करने का बायस होंगे, और उसकी वजह से वो भी नोड्यूल्स बना सकते हैं विद द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। थर्ड जो इसकी जो पिक्चर की पार्ट है उसको मैंने इतना ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ये हमारे लेक्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ कि जिस तरह का राइजोबिया का और फ्रैंकिया का रिलेशनशिप है नोड्यूल फॉर्मेशन का विद द होस्ट रूट सेल्स, इसी तरीके से आपको पता होगा फंजाई का भी रिलेशनशिप हो सकता है विद द रूट सेल्स ऑफ द होस्ट प्लांट। और उसी के लिए ये थर्ड एक सजेशन भी दी गई है कि ये जो फंगस के जो जीन्स हैं और फंगस की जो प्रोटीन्स हैं वो भी इन्हीं फ्लेवोनोइड्स की वजह से जो है वो स्टिमुलेट हो सकती हैं और एक्टिवेट हो सकती हैं, और उसकी वजह से फिर उनकी अट्रैक्शन हो सकती है उन फैक्टर्स की वजह से, और वो कॉलोनाइज कर सकते हैं टुवर्ड्स द रूट सेल्स, और फिर उसके साथ इन्फेक्शन एंड देन फिर वो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनका बनता है फंजाई का और प्लांट के रूट सेल्स का, तो वो ये इनकी वजह से बन सकता है। Up till now, we have discussed that the host plant root cells released a signal in the form of flavonoid, which not only attract the bacterium but also get them multiply and develop in the rhizosphere. और उसके अलावा मैंने भी आपको दिखाया है कि they are also responsible for the stimulation of their node genes to produce node factor. अब नोड फैक्टर क्या है कि नोड फैक्टर जिनको आप नोडुलेशन फैक्टर भी बोलते हैं, अगर आप इसको प्रिसाइजली डिफाइन करें तो these are lipochitin oligosaccharides signal molecules, all of which have a chitin beta-1-4-linked N-acetyl-D-glucosamine backbone, which is varying in length from 3 to 6 sugar units, and a fatty acyl chain on the carbon number 2 position of the non-reducing sugar. ये मैं आपको आगे डायग्राम में इसको फर्दर एक्सप्लेन भी करूँगी। So अगर आप इसको देखिए तो these are the not a new thing, actually these are the derivatives of chitin. काइटिन जो कि यूजुअली सेल वॉल ऑफ द फंजाई में और एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट्स में पाया जाता है। आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में पढ़ा होगा कि इट्स अ काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड जिसके अंदर बीटा-1-4 लिंकेज होती है, और इसका जो मोनोमर है वो एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन होता है। तो डी ग्लूकोसामाइन जो है ये रिपीटेडली जो है वो पॉलीमराइज करेंगे और आपके पास जो है वो काइटिन बन जाएगा। अब नोड फैक्टर का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो इनके जैसा ही है, सिवाय उसमें चेंज क्या है कि जो एक यूनिट है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन का
उसमें कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे जो असाइल चेन है फैटी एसिड की वो चेंज हो जाती है, वो फैटी एसिड वहाँ पे लग जाता है। ठीक है, उस फैटी एसिड के लगने की वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, या यूँ आप कह सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द काइटिन। और ये काइटिन फिर इनको फिर हम क्या कहेंगे कि दीज आर काइटो ओलिगोसैकेराइड, यानी कि ये काइटो ओलिगोसैकेराइड्स ही हैं, लेकिन ऐसे काइटो ओलिगोसैकेराइड्स हैं जो कि लिपिड भी अपने अंदर जो है वो रखते हैं, फैटी एसिड की चेन भी अपने अंदर रखते हैं। नोड फैक्टर्स secreted into the soil solution by the rhizobia induce several significant changes in the growth and metabolism of the host root, as I told you कि ये अपनी जो आप कह लें कि सिचुएशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेवर कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके ये नोड्यूल की फॉर्मेशन कर सकें। सो दिस विल prelude to rhizobial invasion of the root hair and subsequent nodule development. These changes include the increased root hair production and the development of shorter, thicker roots, and this also stimulated by the node factor to renew their growth, and the root hairs develop branching and curl at the tip। तो ये जो सारा जो आपको डायग्राम में भी मैंने समझाया था कि ये जो रूट हेयर कर्ल कर जाता है और हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है अराउंड द बैक्टीरिया, तो दैट्स बिकॉज ऑफ दिस नोड फैक्टर्स जो कि बैक्टीरिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो फिर इन टर्न स्टिमुलेट कर रहे हैं रूट हेयर सेल्स को कि वो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाएं। This is the diagram of the structure of a typical node factor, which is a derivative of chitin. So that's why we named it as lipochitin oligosaccharide. तो इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है अगर आप सिंगल एक यूनिट को ले लें तो काइटिन का जो एक यूनिट है जो कि रिपीटेड हो सकता है नोड फैक्टर की सूरत में, 2 से 3 इसके नंबर जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये जो एक सिंगल इसका कह लें कि जो मोनोमर है अगर आप उसको देखें तो दिस इज़ द टिपिकल पॉलीसैकेराइड। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे जो है वो एन एसिटाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, यानी कि एन के साथ एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। अब ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नेक्स्ट टाइप तो रिपीट होगा ही, लेकिन जो पहला इसका आप कह लें कि मोनोमर है उसमें एन के साथ एसिटाइल ग्रुप लगने की बजाय फैटी एसिड की चेन लग जाती है। तो फैटी एसिड की जब चेन लगेगी और फर्दर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आएंगी तो दिस काइटिन मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड जो कि नोड फैक्टर के तौर पे काम करेगा इन द बैक्टीरियल सेल। Here, rhizobia also release the metogenic signals before that कि वो host plant में invade करें। वो एक metogenic signals जो हैं वो release करते हैं, और इन metogenic signals का काम क्या है कि ये host plant की root cortex में localized जगह पे जहाँ पे future में nodule formation होनी है उन जगह को ये टारगेट करेंगे और वहाँ पे सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, और सेल डिवीजन जब वहाँ पे होगी तो वो प्राइमरी नोड्यूल मेरिस्टेम को बनाने का बायस बनेगी। सिमिलरली ना सिर्फ ये कि रूट कॉर्टेक्स में बल्कि पेरिसाइकिल के सेल्स जो हैं उसमें भी सिमिलर टाइप की जो सेल डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाएगी, और फिर एंड पे ये दोनों जो सेल डिवीजन वाली साइट्स हैं ये फ्यूज होंगी टू फॉर्म अ नोड्यूल एक्चुअली। तो rhizobia host specificity probably determined जब rhizobia जो है attract करते हैं towards the root hairs, तो they must involve some form of recognition between the symbiont and the host। तो ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स के रिलीज होने से राइजोबिया अट्रैक्ट तो हो गए हैं होस्ट प्लांट की तरफ, लेकिन वो इसके अंदर एंट्री, और इन्होंने भी इन टर्न मेटोजेनिक जो है वो सिग्नल्स दे दिए हैं रूट के नोड्यूल के इनिशिएशन के लिए, लेकिन इनकी एंट्री जो है वो तब पॉसिबल होगी जब इन दोनों के म्यूचुअली एक दूसरे को ये रिकॉग्नाइज करेंगे। और ये जो रिकॉग्निशन का जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है कि ये बिटवीन यूनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं मिटोजेंस का ये केमिकल लिंकेज के बाइस होता है बिटवीन यूनिक मॉलिक्यूल्स ऑन द सेल सर्फेसिस, यानी कि बैक्टीरिया की वॉल पे भी जो है ख़ास किस्म के कोई आप कह लें कि केमिकल्स पाए जाने चाहिए या प्रोटीन्स पाए जाने चाहिए,
और इसी तरीके से जो होस्ट प्लांट है उसकी जो सेल सरफेस है उसके ऊपर भी कुछ ऐसी प्रोटीन्स पाई जानी चाहिए, केमिकल पाए जाने चाहिए कि जो आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें और फिर उनकी एंट्री जो है होस्ट सेल में पॉसिबल हो सके। In case of the rhizobia host interactions, recognition appears to involve two classes of molecule. या तो वो lectins हो सकते हैं या फिर वो complex type के polysaccharide हो सकते हैं। lectins क्या चीज, polysaccharide का तो आपको पता है कि these are the sugars, और लेक्टिन्स क्या चीज़ है कि लेक्टिन्स जो हैं these are small non enzymatic proteins हैं, those are synthesized by the host and have the particular ability to recognize and bind to the specific complex carbohydrates। तो लेक्टिन्स की ये खूबी है कि ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि enzymatic in nature नहीं है, लेकिन इनमें ये खूबी है कि ये रिकॉग्नाइज कर सकती हैं और बाइंड कर सकती हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड को, ये डिटेक्ट कर लेती हैं और उनके साथ ये बाइंड कर लेती हैं। Individual legume species each produce different types of lectins with different sugar binding specificities. Lectin appears to recognize the complex polysaccharide, as I told you, found on the surface of the potential symbiont. अब सिम्बायोट्स जो हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उनकी सरफेस पे अगर आप नॉर्मली भी देखें तो आपको बहुत टाइप के जो कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो मिलते हैं, लेकिन जो सिम्बायोट सिम्बायोसिस करने जा रहा है अपने एक स्पेसिफिक होस्ट के साथ, तो वो उसके फ्लेवोनाइड की प्रोडक्शन की वजह से वो एक ख़ास किस्म के स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड बनाएगा, जो कि एक्चुअली इन दोनों की आपस में अट्रैक्शन का बाइस बनेगा और वो होस्ट सेल के फ्लेवोनाइड की सिक्रीशन की वजह से बनेगा। अब होगा ये कि इधर से ख़ास किस्म के स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड जो हैं वो बैक्टीरिया ने बना लिए हैं और अपनी सरफेस पे उसके मौजूद हैं, और उधर से होस्ट प्लांट के जो सेल्स हैं वो भी ख़ास किस्म के जो हैं वो लेक्टिन्स बनाएंगे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। तो जो नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं, अब ये जो लेक्टिन्स जो बनाएंगे ये सरफेस पे जो बैक्टीरियम की सरफेस पे पॉलीसैकेराइड मौजूद होंगे उनके साथ ये इंटरेक्ट करेंगे, और इस तरीके से इनकी स्पेसिफिसिटी जो है वो डिफाइन होगी। मतलब एक तरफ वो पॉलीसैकेराइड है जो होस्ट प्लांट के ही फ्लेवोनाइड को रिलीज करने की वजह से बने हैं और बैक्टीरियम की सरफेस पे मौजूद हैं, और दूसरी तरफ होस्ट प्लांट बजाते खुद भी ऐसे लेक्टिन्स बना रहा है जो उस खास किस्म के पॉलीसैकेराइड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। दैट इज वाई ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इस तरीके से फिर बैक्टीरियम की एंट्री जो है इनटू द होस्ट रूट सेल्स जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये जो हमारा हाइपोथेसिस है ये वाकई में दुरुस्त है, तो इसके लिए रिसर्च की गई, और उसमें उन्होंने क्या किया कि हम अभी मैंने आपको टेबल पे बताया था कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम की एक जो बायोवार है विसिया, वो सिर्फ पी प्लांट के जो रूट सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट कर सकती है और उनके साथ नोड्यूल फॉर्मेशन कर सकती है। अब किया ये है कि पी प्लांट ने जो के रूट सेल्स ने जो लेक्टिन बनाए अपने बायोवार विसिया जो बैक्टीरियम था उन उसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन लेक्टिन्स को व्हाइट क्लोवर के जो रूट सेल्स हैं उनके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ये जो लेक्टिन्स थे ये थे तो पी प्लांट के, लेकिन इंट्रोड्यूस हो गए हैं व्हाइट क्लोवर के। अब व्हाइट क्लोवर की स्पेसिफिसिटी नॉर्मल हालात में देखें तो बायोवार विसिया के साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके पास वो प्रोटीन आ चुकी है, वो एक ऐसा आप कह लें कि सिग्नल आ चुका है जो कि पी में अट्रैक्ट करता था पॉलीसैकेराइड को ऑफ द बैक्टीरियम। तो अब उन्होंने देखा कि ये जो बायोवार विसिया है इसने ना सिर्फ ये कि वो पी के साथ तो बना ही रहा था, लेकिन उसने उन व्हाइट क्लोवर के साथ भी इस एसोसिएशन को डेवलप कर लिया कि जिसके अंदर पी वाले लेक्टिन्स जो थे वो मौजूद थे। Second stage involves invasion of the root hair and the formation of an infection thread. First of all, we will discuss the invasion of the root hair. In the second stage of nodulation, the bacterium must penetrate the host cell wall in order to enter the space between the wall and the plasma membrane. पी प्लांट की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें ये देखा गया है कि जो प्रेफर्ड अटैचमेंट साइट है राइजोबिया की वो उसकी ग्रोइंग रूट हेयर की टिप है।
दैट इज वाई जो रूट हेयर की टिप हैं उनमें ग्रोथ ज़्यादा होती है और वहाँ पे न्यू वॉल मटेरियल जो है वो लेट डाउन होता रहता है on the only at the tip of the elongating hair cell. Colonies of the attached rhizobia become entrapped by the tip of the root hair because it curls around the rhizobial colonies. How rhizobia actually breach the cell wall? It is unknown, but it definitely involved certain um, degree of wall degradation material. जैसा कि आपको पता ही है कि वॉल के अंदर सेल वॉल के अंदर पैक्टिन पाया जाता है, हेमिसेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो राइजोबिया ज़रूर ऐसे एंजाइम्स को जो है वो रिलीज करता होगा कि जिससे जैसा कि पैक्टिनेज है, हेमिसेलुलेज है या सेलुलेज है, जो कि इस वॉल मटेरियल को डिग्रेड कर सकें और फिर ये उसके अंदर एंटर कर सके. So these enzymes could result in the localized interference with the assembly of the growing wall at the root tip and allow the bacteria to breach the cell wall and gain access to the underlying plasma membrane of the cell. Now, once the rhizobia reach the outer surface of the plasma membrane tip, growth of the root hair ceases and the cell membrane begins to invaginate. And the result is a tubular intrusion into the cell called an infection thread, as I showed you in the diagram, which contains the invading rhizobia. In it, the infection thread elongates by adding new membrane material, by fusion with vesicles derived from the Golgi apparatus, and as the thread moves through the root hair cells, a thin layer of cellulosic material is deposited on the inner surface of its membrane. So because of this wall material is continuous with the original cell wall, the invading bacteria never actually enter the host cell but remain technically outside the cell because it is separated from the inner side of the cell through this material. The infection thread continues to elongate until it reaches the base of the root hair cell. Here it must again breach the cell wall in order for bacteria to gain access to the next cell in their path. This is apparently accomplished by fusing the infection thread membrane with the plasma membrane of the host cell. In this process, some bacteria are also released in the apoplastic space. These bacteria apparently degrade the wall of the next cell in line, thus allowing the infection process to continue into the successive cells in the cortex. As the infection thread moves through the root hair into the cortex, the bacteria continue to multiply. When the thread reaches the developing nodule, it branches so that many individual cells in the young nodule become infected. Finally, bacteria are released. The final step in the infection process occurs when the bacteria are released into the host cell. Actually, the membrane of the infection thread buds off to form small vesicles, each containing one or more individual bacteria. Shortly after release, the bacteria cease dividing, enlarge, and differentiate into specialized nitrogen-fixing cells called bacteroids. The bacteroids remain surrounded by a membrane, now called the peribacteroid membrane. Differentiation into a bacteroid is marked by a number of metabolic changes, including the synthesis of enzyme and other factors that the organisms requires for the principal task of nitrogen fixation. The infection process continues throughout the life of the nodule. As the nodule increases in size due to activity of the nodule meristem, bacteria continue to invade the new cells. Also, as the nodule enlarges and matures, vascular connections are established with the main vascular system of the root, as shown in the figure in the next slide. These vascular connections serve to import photosynthetic carbon into nodule and export fixed nitrogen from the nodule to the plant. Here the schematic diagram of a cross-section through a mature nodule is given. You can see here that the nodule have vascular connections like this from the mainstream root vascular tissue.
And these vascular tissue actually, the connections actually provide for the exchange of carbon and nitrogen between the host and the microsymbiont. The host give the photosynthate to the nodule, while the microsymbiont in return give the fixed nitrogen to the root cell. In this slide, stages in the initiation and development of a soybean root nodule are shown. Diagram A जो है, this is representing the events involved in the initiation of nodule, और diagram B जो है, this is representing the stages of infection and nodule formation. Recall the anatomy of the root. As we know कि outermost जो layer of cells है वो epidermis कहलाती है. Then उसके बाद हमारे पास cortical regions हैं, cortex के cells हैं, और उसके बाद we have pericycle layer जिसके cells मौजूद हैं, and then जो कि 1 to 2 in layer होते हैं, and then phloem है और उसके साथ xylem है. तो पहला ही जो आप कह लें कि जो इवेंट है दैट इज इन्वॉल्व इन द नोड्यूल फॉर्मेशन, वो सिग्नल का स्क्रेट होना है फ्रॉम द रूट सेल्स टू द एनवायरनमेंट इन द राइजोस्फीयर, ताकि राइजोबिया को अट्रैक्ट किया जा सके रूट सेल्स की तरफ कि वो यहाँ पे आके नोड्यूल फॉर्मेशन कर सकें. और इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, और आप जानते हैं कि वो फ्लेवोनाइड्स जो हैं होते हैं जो कि कीमोटैक्सिस के ज़रिए बैक्टीरिया इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और फिर ये राइजोस्फीयर में आएंगे. सेकंड स्टेज इज शोइंग कि राइजोस्फीयर में बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द स्टिमुलाई बाय द रूट हेयर सेल्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो चुके हैं, और इसके अलावा इन्होंने ये अट्रैक्ट हो चुके हैं टुवर्ड्स द रूट सेल्स, और इन रिटर्न ये जो एरो शो कर रहा है टुवर्ड्स द रूट हेयर सेल, ये कि इन्होंने भी इन रिटर्न सिग्नल प्रोवाइड किए हैं रूट सेल्स को कि वो प्राइमरी नोड्यूल मेरिस्टेम की जो इनिशिएशन है वो स्टार्ट कर दे इन द कॉर्टिकल रीजन. तो थर्ड स्टेप में यही दिखाया गया है कि रूट कॉर्टेक्स जो है वो तेज़ी के साथ डिवाइड करेगी और वो फॉर्म करेगी द प्राइमरी नोड्यूल मेरिस्टेम. On the left side of the diagram, in the diagram B, आप जो पहली स्टेज आप देखते हैं स्टेज देखते हैं इन्फेक्शन की एंड नोडुल फॉर्मेशन की, उसमें जो राइजोबिया हैं वो रूट हेयर्स के साथ जो हैं वो अटैच हो चुके हैं. और इन द मीन वाइल अगर आप नोट करें, जिसको स्टेज नंबर 5 से शो किया गया है, कि जो प्राइमरी नोड्यूल मेरिस्टेम है वो तो बन ही चुके हैं पहले से, लेकिन सेकेंडरी नोड्यूल मेरिस्टेम भी अब इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए हैं, और दिस सेकेंडरी मेरिस्टेम्स एक्चुअली इस्टेब्लिशिंग इन द पेरिसाइकल लेयर. तो पहले प्राइमरी जो नोड्यूल मेरिस्टेम थे वो कॉर्टिकल सेल्स में थे, और उसके साथ साथ जो सेकेंड नोड्यूल मेरिस्टेम है वो बनेंगे इन द पेरिसाइकल सेल. 6 स्टेज पे ये शो किया गया है कि इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो बन चुका है, और इसने जो आप कह लें कि प्राइमरी नोड्यूल मेरिस्टेम के जो सेल्स हैं उनको इन्वेट कर लिया है, और इसके अंदर अपनी ब्रांचेस भी ये बना चुका है. नेक्स्ट स्टेज इज शोइंग द मर्जिंग ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी नोड्यूल मेरिस्टेम, और इन दोनों की फ्यूज होने से इस सिंगल क्लम्प जो है वो डेवलप हो जाएगा इन्फेक्शन थ्रेड का, और फिर ये आगे प्रोग्रेस करेगा और कंटिन्यू करता रहेगा ग्रो करना. नेक्स्ट स्टेज में जो कि लास्ट स्टेज भी दिखाई गई है नोड्यूल फॉर्मेशन की, नोड्यूल जो है इसी तरीके से अब वो उसकी प्रॉपर जो इनिशिएशन है फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और अब वो क्या करेगा कि फर्दर इनलार्ज होगा, इलोंगेट होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, और इसके साथ साथ वो वास्कुलर कनेक्शंस भी बना लेगा. ये वही वास्कुलर कनेक्शंस हैं जिनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि दीज आर मेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, कि ये जो राइजोबिया को फोटोसिंथेट चाहिए, कार्बन चाहिए,
तो वो इन्हीं वास्कुलर कनेक्शन से प्लांट से लेगा, प्लांट के सेल से लेगा रूट से, और इन रिटर्न जो ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा तो वो जो है फिर इन रिटर्न वो रूट सेल्स को देगा। Root nodule formation on leguminous plants is a complex process that results in the nitrogen-fixing symbiosis. The plant root releases nutrients that attract rhizobia and other bacteria. The first step in developing the symbiosis is attachment of the rhizobia to the surface of the plant root hair. A specific adhesion protein called Rick adhesin is present on the surface of specific rhizobium species. Carbohydrate-containing lectins are important plant cell surface receptors. Following binding, the root hair curls as the result of nod factors which migrate to the plant cell nucleus and influence transcription of genes needed for the symbiotic relation. Following curling, the bacteria enter the root hair and induce the plant to form a cellulosic tube called the infection thread, which spreads down the root hair and into adjoining cells. Plant cells become infected by movement of bacteria through the infection thread and start to divide in response to nod factors from the rhizobia. The rhizobia multiply rapidly in the plant cells and are transformed into misshapen structures called bacteroids. Bacteroids become surrounded by plant cell membrane to form structures called symbiosomes. Only at this stage does nitrogen fixation begin. References of the books and some articles are given here for further understanding of the topic. This is all about today's lecture. Thank you very much. If you have any question or query, you can ask me through Google Classroom, through WhatsApp group, or via email.